المزل یا مدہل، اس کو زال سے بھی لکھتے ہیں اور زواد سے بھی لکھتے ہیں، اور یہ قرآن میں بہت زیادہ دفعہ آیا ہے۔ اب اس کی اگین ٹرانسلیشن رانگ یہاں پر لکھی ہوئی ہے، جو یہ میں نے اسلامک سورس سے یہ اسکرین شاٹس لیے ہیں، اور لکھا ہے ہیومیلیٹر، یعنی کہ جو ہیومیلیٹ کرے، حالانکہ ہیومیلیٹر نہیں ہے، اس کا مطلب ہے the deceiver، چیٹر، دھوکہ دینے والا۔ اور اس کی میں بہت ساری آیات آپ کو یا وہ پڑھ کے سناؤں گا کہ یہ کہاں سے میں نے لفظ لیا ہے۔ تو دھوکہ دینے والا جو ہے یا گمراہ کرنے والا یہ شیطان ہے، اور اس کے بارے میں بائبل سے بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ اللہ کے جو 99 نام ہیں، 99 نیمز ہیں، ان میں سے 26 نیم ہے المزہل، یعنی مزل، جس کا مطلب ہے دھوکہ دینے والا، یعنی کہ گمراہ کرنے والا، اور انگلش میں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس نے ٹرانسلیشن کروائی ہے دا ہیومیلیٹر، یعنی کہ جو ہیومیلیٹ کرے، حالانکہ یہ بھی غلط ہے، دیکھا جائے تو یہ بھی شیطان کرتا ہے۔ آپ کو پتا ہے بائبل میں لکھا ہے کہ الزام لگانے والا کون ہے؟ ابلیس ہے، جو کہ الزام لگاتا ہے، پہلے گناہ کرواتا ہے پھر الزام لگاتا ہے۔ خدا کسی کو ہیومیلیٹ نہیں کر سکتا، اگر وہ سچا خدا ہے تو بائبل کا خدا کسی کو ہیومیلیٹ نہیں کر سیمی سیمسن چوڑے کا داماد ابراہیم قادری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ کبھی کبھی مجھے کرسچنوں پر بڑا افسوس ہوتا ہے، ان کے پر بڑا رحم آتا ہے، ترس آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو کتنی گہرائیوں میں، پنہائیوں میں گرایا ہوا ہے۔ انہوں نے خدا بھی بنایا تو بدکار۔ بائبل مقدس کا پردی والا خدا، جو یرمیہ کی کتاب اس کا 42واں باب 10ویں آیت، جو جب خدا اپنے انصاف کے تقاضے کو پورا کرتا ہے تو وہ اس کے بدی کے زمرے میں آتا ہے۔ انہوں نے جو یہوہ بنایا وہ بھی یہوہ، یعنی کہ پاگل، اور جو انہوں نے سکالر بنائے، اور جو ان کو اپنے جن کو یہ پاسٹر وغیرہ کہہ کے پجاری ہماری ان کے بنتے ہیں، یعنی کہ جیسے یہ ٹی جی باسٹرڈ ہے، وہ بھی حرامی ہے، وہ ایسے لوگوں کو سامنے کھڑا کر دیا کہ جی یہ کریں گے، جی یہ اینٹی اسلام ورک کریں گے۔ اوقات ان کی یہ ہے کہ جو بھی کریں گے جھوٹ بول رہے۔ میں نے جتنے بھی میرے آپ بیانات دیکھتے آ رہے ہیں، اب میں اس کے جھوٹوں کا پردہ چاک کیے آ رہا ہوں، اور بائبل میں سے بھی جو ہے وہ آپ کو بائبل کی سچائیاں بھی آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ تو یہ جو لفظ ہے المزل، یہ صرف الف میم زال لام سے ہے، زواد یا دواد اس میں نہیں ہے۔ دواد والا جو ہے یہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے، فریب دے رہا ہے، یہ اپنی والدہ کی تعلیمات پر چل رہا ہے۔ کون؟ باسٹرڈ ٹی جی خان۔ اب آتے ہیں، یہ جو مزلو ہے، اس کا لفظی مطلب ہے جملہ، یعنی کہ ہے ذلت دینے والا۔ اور ذلت دینے والا کون ہے؟ ذلت دینے والی صرف ایک ہی ذات ہے، اور کوئی اس کے سوا ذلت نہیں دے سکتا۔ وہ کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اس کو ہم دیکھیں گے سورہ ال عمران، یعنی کہ تیسری سورہ مبارکہ ہے، اور اس کی آیت ہے 26 اور یوں عرض کر، اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہے سلطنت دے اور جسے چاہے سلطنت چھین لے، اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں، بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور اللہ رب العزت جسے چاہے ذلت دے، جسے چاہے عزت دے۔ اب یہ اس بندے کا کام ہے، اس کے کرم پر ہے، اس نے جو کام کیا ہوگا اس کے مطابق اس کو اللہ رب العزت کو بدلہ دے دے گا۔ اب ایسا تو نہیں ہے، یہاں پر دین اسلام میں ایسا قطعی نہیں ہے کہ شیطان ذلت دے گا یا کوئی اور ایسی ہستی ہے جو ذلت دے گی۔ ذلت کون دے گی؟ اللہ رب العزت۔ عزت کون دے گا؟ اللہ رب العزت۔ ذلت دینے کے لیے وہ کسی کو بھی وسیلہ بنا سکتا ہے، عزت دینے کے لیے وہ کسی کو بھی وسیلہ بنا سکتا ہے۔ عزت اور ذلت میرے اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اور مزید ہم دیکھتے ہیں اسے تیسری سورہ مبارکہ آیت 178، اور ہرگز کافر اس گمان میں نہ رہیں کہ وہ جو ہم نے انہیں ڈھیل دیتے ہیں کچھ ان کے لیے بھلا ہے، تو ہم تو اسی لیے انہیں ڈھیل دیتے ہیں کہ اور گناہ میں پڑے، اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ یعنی کہ یہ کن کے لیے ہے؟ یہ کرسچنوں کے لیے یہ آیت ہے کہ جب ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اس کو ڈھیل دی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں یہ اینٹی اسلام ورک کر رہے ہیں، بے غیرتیاں جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور میں اور کافی بھائی ہیں جو ان کے جھوٹوں کے پردے چاک کر رہے ہیں، اس کے باوجود حقائق بالکل سامنے رکھ رہے ہیں، یعنی کہ دوسرے انداز میں رکھ رہے ہیں، سادہ انداز میں رکھ رہے ہیں، جو کرسچنیلٹی کی سمجھ میں نہیں آ رہا، جو مسیحیت کی سمجھ میں جو نئی چیزیں آتی
जो मेरे अंदाज में, मुझे पता है कि मसीहत जो है या क्रिश्चियनिटी या काफर है, जो जिस अंदाज में समझते हैं मैं उस अंदाज में उनको समझा रहा हूं। उसके बावजूद आप जब कमेंट्स में देखेंगे तो अजीब अजीब सी इनके बेगैरतियां होंगी, अजीब अजीब सी बेगैरतियां करेंगे जो अजीबोगरीब, कोई सर पैर नहीं होता। इसका मतलब है अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें ढील दे रहा, तो ये ना समझो कि तुम हक पर हो। इसका मतलब ये है कि तुम जिल्लत का अजाब सहने वाले हो। और मजीद हम चलते हैं, सूरह अल इनाम यानी कि 6ठी सूरह मुबारका है और आयत है 124 यानी कि 124। और जब उनके पास कोई निशानी आए तो कहते हैं हम हरगिज़ ईमान ना लाएंगे जब तक हमें भी वैसा ही ना मिले जैसा अल्लाह के रसूलों को मिला। अल्लाह खूब जानता है जहां अपनी रिसालत रखे। अल्लाह रब्बुल इज्जत जानता है, खूब जानता है कि वो किसको उसने रसूल बनाना है। अन करीब मुजरमों को अल्लाह के यहां जिल्लत पहुंचेगी और सख्त अजाब बदला उनके मकर का। और फिर हम मजीद देखते हैं, सूरह यूनुस यानी कि 10वीं सूरह मुबारका है और आयत है 27। और जिन्होंने बुराइयां की तो बुराई का बदला उसी जैसा, बुराई का बदला उसी जैसा, और इन पर जिल्लत चढ़ेगी, उन्हें अल्लाह से बचाने वाला कोई ना होगा। गोया इनके चेहरों पर अंधेरी रात के टुकड़े चढ़ा दिए हैं, वही दोजख वाले हैं, वो इसमें हमेशा रहेंगे। यह है अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान कुरान पाक में। और भी बहुत सारे फरमान हैं जिल्लत के बारे में कि जो क्रिश्चियनों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, जिनके लिए क्रिश्चियनों के लिए जिल्लत तैयार करके रखी हुई है। क्रिश्चियन यानी कि काफर है, 100% काफर है। तो इन बेगैरतों के लिए, इन क्या काफरों के लिए, इन क्रिश्चियनों के लिए जिल्लत जो तैयार कर रखी है, किस लिए? इसलिए नहीं कि इनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहकाया या गुमराह किया, ऐसा कतई नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत, आप अपनी उम्र में देखें, आप अपनी जिंदगी में देखें, आप पर कोई ऐसा वक्त आया होगा लाजमी, 100% है, जब आप इस्लाम की तरफ माइल हुए हों पूरी तरह, पूरे खलूस से। आपका दिल, आपका जहन, आपका जिस्म, आपका सोच जो है वो इस्लाम की तरफ माइल हुई होगी। अगर आपने इस्लाम की तरफ यानी कि इस्लाम की थोड़ी बहुत स्टडी की है, इस्लाम की अच्छी चीजें, इस्लाम में बुरी चीज है ही नहीं, इस्लाम की तालीम बात ने आप पर असरअंदाज किया होगा, मगर आपने उसको दबा लिया। दबा कर क्या किया? अपनी जिल्लत को यानी क्रिश्चियनिटी को, गलाजत को उड़े रखा। अब ये तो है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जिल्लत उसी सूरत में देगा, उसी वक्त देगा जब आप जिल्लत वाले काम करोगे, मगर यहां पर कुछ और है। यहाँ का कौन सी? गलाजत में। बाइबल की तरफ आएंगे, इब्लीस के कारनामे कैसे हैं। ये जो यहोवा है, ये क्या, किस तरीके से जिल्लत देगा, ये आपने नोट करना है कि इसका अंदाजे जिल्लत देने का वो क्या है और किस अंदाज से। ये आपने पूरी तवज्जो से, ये जो मैंने अभी 3 यानी कि हवाले दूंगा बाइबल के, आपने पूरी तवज्जो से इन पर तवज्जो देनी है और सोचना है कि क्या वाकई ही जो हकीकी खुदा है, हकीकी अल्लाह है, वो ऐसी हरकत कर सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं सलातीन अव्वल बाब 22। तब उसने कहा, अच्छा तो खुदावंद के सुखन को सुन ले। मैंने देखा कि खुदावंद अपने तख्त पर बैठा है और सारा आसमानी लश्कर उसके दाहिने और बाएं खड़ा है। और खुदावंद ने फरमाया, कौन अखियाब को बहकाएगा ताकि वो चढ़ाई करे और रामात जिलाद में खेत आए। तब किसी ने कुछ कहा और किसी ने कुछ कहा, लेकिन एक रूह निकलकर खुदावंद के सामने खड़ी हुई और कहा, मैं उसे बहकाऊंगी, मैं उसे बहकाऊंगी। खुदावंद ने उससे पूछा, किस तरह? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब नबियों के मुंह में झूठ बोलने वाली रूह बन जाऊंगी। वो कौन सी रूह थी? वो पाक रूह थी। कौन सी? हाँ, पाक रूह थी ना, रूहुल कुद्दस था वो, रूहुल कुद्दस थी वो, कबूतर की शक्ल में वही थी ना, खड़ी थी। उसने कहा, तू उसे बहका देगी और गालिब भी होगी, और रवाना हो जा और ऐसा ही कर। सो देख, खुदावंद ने तेरे इन सब नबियों के मुंह में झूठ बोलने वाली रूह डाली है और खुदावंद ने तेरे हक में बदी का हुक्म दिया, यानी यहोवा ने तेरे हक में क्या किया है? बदी का हुक्म दिया है। और यहोवा ने क्या भेजा है? पाक रूह भेजा है। पाक रूह, ये पाक रूह है ना, होली स्पिरिट है, रूहुल कुद्दस है, जो उसके नबियों के मुंह में झूठ बन जाएगा। क्या यार, क्या तुम्हारी औकात क्या है, क्या क्वालिटी है, बाइबल की क्या क्वालिटी है, क्या यहोवा की क्या क्वालिटी है, कैसी क्वालिटी, कैसी जबरदस्त क्वालिटी है। ऐसी कोई क्वालिटी आप कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत में नहीं पाएंगे। अब मजीद आगे चलते हैं, इसकी बात 14 और इसकी आयत 9। और अगर नबी फरेब खाकर कुछ कहे
तो मैं खुदावंद ने उस नबी को फरेब दिया, तो मैं खुदावंद ने तो मैं यहोवा ने उस नबी को फरेब दिया, और मैं अपना हाथ उस पर चलाऊंगा और उसे अपनी इस्राएली लोगों में से नाबूद कर दूंगा, और वो अपनी बदकिरदारी की सजा की बर्दाश्त करेंगे। नबी की बदकिरदारी की सजा वैसी ही होगी जैसी सवाल करने वाले की बदकिरदारी की। ये क्या आपने सुन लिया? मैंने अपनी तरफ से कोई लफ्ज तो नहीं बढ़ाया, सिर्फ खुदावंद की जगह यहोवा इस्तेमाल किया। ये असल में ये यहोवा रट्टा लगा रहा है, तो फिर मैं भी खुदावंद की जगह जो बाइबल का खुदा है उसको बाइबल का खुदा कहने की बजाय यहोवा कह रहा हूं। अब ये यहोवा ने क्या किया? अब वो खुद इसमें इस आयत में हिजकिय्याल बात 14 और आयत 9 में अपना ये बिल्कुल एतराफ कर रहा है कि मैंने उस नबी को क्या किया? फरेब दिया। अब जब इसने नबी को फरेब दिया, अब उसका तो कोई मसला ही नहीं, अब उसने यहोवा ने नबी को फरेब दिया, बाद में वो उसको जिल्लत देगा। समझ में आई? ये किसका काम हो सकता है? आगे एक और हवाला देखते हैं, बाद में देखते हैं कि ये किसका काम है। हिजकिय्याल बाब 20 और आयत 25, सो मैंने उनको बुरे आइन और ऐसे अहकाम दिए जिनसे वो जिंदा ना रहें, और मैंने उनको उन्हीं के हदियों से यानी सब पहलोटों को आग पर से गुजार करना पाक किया, ताकि मैं उनको वीरान करूं और वो जाने के खुदावंद मैं ही हूं, यानी यहोवा मैं ही हूं। अब ये दो जगह पर, बल्कि तीनों जगहों पर यहोवा का इतराफ है कि मैं क्या कर रहा हूं? उनको गुमराह कर रहा हूं। उनको जो हालांकि अच्छे भले चल रहे थे, उनको क्या कर रहा है? उनको यहोवा जो है उनकी कभी किसी की तरफ बदरू भेजता है, किसी को फरेब दे रहा है और किसी को बुरे आयन दे रहा है। किस लिए? कि उनको गुमराह करके, उनको जो है बर्बाद करके, गुनाहगार करके उनको क्या किया जाए? उनको जिल्लत दी जाए। यह किसका काम है? जब आप सोचेंगे तो आपकी जुबान से सिर्फ एक ही लफ्ज निकलेगा कि ये अबलीस का काम है। तो इसका मतलब यहोवा क्या है? खुल के बोले, आपको किसने आपके मुंह पर हाथ रखा? यहोवा क्या है? देखिए दूसरा ग्रंथियों उसका 4 बाब उसकी 4 आयत, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है। इस जहान के खुदा ने यानी शैतान ने, और इस जहान का खुदा कौन है? ये इब्लीस है, ये शैतान है। और इस जहान का खुदा इब्लीस है। यहोवा अबलीस है। यहोवा असल में अबलीस है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हकीकी परवरदिगार है, हकीकी खुदा है। अगर किसी में भी, मैं दोबारा कह रहा हूं, टीजी खान चाहे है, चाहे सैमी सैमसून है, चाहे कोई भी बास्टर्ड है, कोई भी पास्टर है, कोई भी एल्डर है, कोई भी ब्रादर है, कोई भी है, किसी में अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आ जाए, फिजिकली आमने सामने बैठ जाते हैं। वो जो कुछ ये टीजी खान बकवास करता है वो ये साबित करे मैं कह रहा हूं, मैं मस्जिद हवाला जाता, ये बदरूहें वगैरह भेजने वाले मामलात हैं, ये आयन बिगड़ा हुआ आयन देने वाले मामलात, ये बाइबल भरी पड़ी है, बहुत हवाला जात मैंने निकाले हुए, तो मैं उसका मुंह बंद करूंगा, इससे साबित करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। यीशु मसीह कुत्ता है। ये सूर में और कुत्ते में कोई फर्क नहीं है। कुत्ता कुत्ता है, यीशु भी कुत्ता है। फरमाने अल्लाह रब्बुल इज्जत है, बेशक जो ईमान लाए और अल्लाह के लिए घर बार छोड़े और अल्लाह की राह में अपने मालों और जानों से लड़े, अगर वो दीन में तुमसे मदद चाहे तो तुम पर मदद देना वाजिब है। सूरह अल-इन्फाल आयत 72। गैर मुस्लिम जब इस्लाम कबूल करता है, उसका खानदान, रिश्तेदार, बरादरी उसकी जान की दुश्मन बन जाती है, उस पर तशद्दुद होता है, उसे घर से निकाल दिया जाता है, वो तही दस्तो तही दामन हो जाता है। इस सूरत में उम्मत मुसलमान की जिम्मेदारी बनती है कि उसे पूरी तरह दीनों दुनिया में बहाल किया जाए। न्यू मुस्लिम का इकराम करना मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। सही बुखारी 3344 हदीस मुबारका और सही मुस्लिम दूसरी जिल्द हदीस मुबारका 1064। इसी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए मैंने यानी मोहम्मद इब्राहिम कादरी ने अदारा बराए तहफ़्फ़ुज़ व बहाली नौ मुसलमीन कायम किया है। अदारा के मकसद गैर मुस्लिमों में तबलीग करना, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों की दीनी तालीम व तरबियत
न्यू मुस्लिम बहन भाइयों के रोजगार और रिहाइश का बेहतरीन और मुस्तकिल हल, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों की शादी ब्याह और कानूनी मामलात में भरपूर अमदाद इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। बराए करम अपनी ज़कात सदकात और फितराना से भरपूर इमदाद फरमाएं। बराए राब्ता व अमदाद 0305 890 2412 मोबी कैश अकाउंट मोहम्मद इब्राहिम कादरी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी ज़ात के लिए आपके एक पैसे की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरी अच्छी जॉब है और मेरे पास अच्छी आमदन है, मेरे मामलात सही हैं। 13-14 साल से मैं जिस लेवल पर लाइफ गुजार रहा हूँ और मैं इसका आदी हूँ। आपका एक एक पैसा न्यू मुसलमान यानी कि जो नए मुसलमान हो रहे हैं, जिनको मैं खुद कलमा पढ़ा रहा हूँ या कहीं और से उन्होंने कलमा पढ़ा और वो अब दायरा इस्लाम में है। अब एक मुसलमान जब दीन इस्लाम में आता है तो बिल्कुल खाली हाथ होता है, बिल्कुल खाली हाथ। जो उसने सूट पहना होता है वही उसके तन पे होता है और जो उसने जूते पहने होते हैं वही उसके पास होते हैं। वरना जैसे ही वो, अब मैं भी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मगर यानी कि स्ट्रॉन्ग रुपये पैसे वाली फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मगर जैसे मैंने इस्लाम कबूल किया तही दामन हो गया, तही दस्त हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो मजदूरियाँ की वगैरह सेट हो गया। तो अब जो न्यू मुस्लिम होते हैं, अब वो बेचारों को स्टैंड करने के लिए, एक न्यू मुस्लिम को स्टैंड करने के लिए पाकिस्तानी रुपयों में 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमारे अदारे को सपोर्ट करने की तौफीक अता फरमाए, और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा भी, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपके पास सिर्फ 100 रुपये आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो भी आप मेरे मोबी कैश अकाउंट में डाल सकते हैं। और ये इत्मीनान रखें कि आपका एक एक पैसा जो है वो न्यू मुस्लिम की फलाह बहबूद के लिए लगेगा।